یعنی اس جلسے کا آغاز ہوا اور ہمارے بہت سارے حضرات احباب یہاں پر موجود ہیں، ہماری ماں بہنیں موجود ہیں، تو بہت ساری باتیں ہمارے حضور علی صاحب نے آپ کے گوشت گزار کی، بہت سارے اچھے واقعات سنائے کہ کس طریقے سے ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے، کیا پاور دی ہے۔ اگر وہ چاہے، اگر وہ کہے، اگر اس کی خواہش ہو، اگر وہ اپنی رب کی بارگاہ میں گزارش کرے کہ اے میرے مولا، میری خواہش یہ ہے کہ آسمان زمین ہو جائے، زمین آسمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے ولی کی قسم ہے، اگر وہ کہے گا کہ زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میرا ولی جیسا کہے گا میں ویسا ہی کر دوں گا۔ جانتے کیوں؟ اس کی وجہ جانتے آپ؟ کیونکہ اس کی زندگی گزرتی ہے اللہ کے لیے، اس کی زندگی گزرتی ہے، رات ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، شام ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، دوپہر ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، عصر ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، مغرب ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، عشاء ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اگر سوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، جب جاگتا ہے تو بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب بتائیے جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو، اللہ تعالیٰ اس کی گزارش کو قبول نہیں کرے گا تو بتائیے کس کی گزارش کو قبول کرے گا؟ ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا ولی کبھی گنہگار نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں بتائی کہ کس طریقے سے جب غریب نواز آئے ہندوستان میں، آپ پر احسان ہے، مجھ پر احسان ہے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں پر، پاکستان کے مسلمانوں پر، بر صغیر کے جتنے مسلمان ہیں، چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے انڈیا کا رہنے والا ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام پر احسان ہے، تو کسی اور کا نہیں بلکہ غریب نواز کا احسان ہے۔ بلکہ اگر میں اس کو اشعار کی روشنی میں کہوں تو میں یوں کہوں، یہ جو کچھ بھی ہے سب غریب احسان، یہ جتنا جو کچھ بھی ہے سب غریب نواز کا احسان ہے۔ تم بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ کس کی وجہ سے مسلمان ہے جانتے؟ آپ آئے اجمیر شریف میں، پرتھوی راج چوہان نے کہا یہ کون ہے بھائی؟ آج تک ایسی کوئی نئی بات نہیں سنی، اس کی زبان سے اللہ اللہ کیوں آ رہا ہے؟ یہاں تو ہم بھگوان کو پوجنے والے ہیں، 33 کروڑ کو پوجنے والے ہیں، 33 کروڑ ہمارے بھگوان ہیں، ہمارے دیوی دیوتا ہے، لیکن یہ ہندوستان کی دھرتی پر یہ کون بندہ آ گیا ہے جو کہتا ہے اللہ اللہ کہو، کسی کو مت پکارو، سننے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، موت دیتا ہے اللہ، زندگی دیتا ہے اللہ، یہاں تک کہ تمہیں امیر بناتا ہے اللہ، غریب بناتا ہے اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے، جو کچھ بھی دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب حیران ہو گئے، سب نے کہا یہ کون فقیر ہے، یہ کون بابا ہے جو ہماری دھرتی پر آ کر ہمیں چیلنج کر رہا ہے؟ جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ ایک بندہ آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں آپ کو ایک موقع دینا ہے کہ آپ جہاں سے آئے نا وہیں چلے جائیے، یہاں آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں پر جہاں دیکھو وہاں پر دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، واپس چلا جاتا۔ آپ نے کہا میں واپس چلا جاتا، مگر میں جاؤں کیسے؟ اگر کسی راجا نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی بادشاہ نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی وکیل نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی شاہکار نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی بڑی نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، مگر مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ خاتم النبیین نے بھیجا ہے، مسیح ہمارے آقا نے بھیجا ہے۔ کہا فرماتے ہیں کہ جب میں سو رہا تھا وہاں پر مسجد نبوی میں سو رہا تھا، سوتے سوتے کیا دیکھتا ہوں کہ آقا خواب میں تشریف لائے، آ کر کہتے ہیں میرے بیٹے یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ تو میری زمین ہے، یہاں تو جگہ جگہ مسلمان نظر آتا ہے، جا ہندوستان چلا جا، ہند کی سرزمین پر چلا جا، وہاں تیری ضرورت ہے، وہاں تجھے پکار رہے ہیں، وہاں کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں، وہاں کی امت تجھے پکار رہی ہے، وہاں کا ایک ایک آدمی تجھے پکار رہا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری ضرورت یہاں نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ہے۔ آپ نے کہا حضور میں نہیں جانا چاہتا، مجھے آپ قدموں میں رہنے کا موقع دے دو، میں تو آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات سننے کے بعد میرے آقا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور جب میں یہاں پر ہوتا ہوں نا مجھے بے چینی ہوتی ہے تو میں آپ کے روزے کو دیکھتا ہوں، آپ کی خبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا اس لیے رکے
کہ تم مجھے دیکھتے ہو، مطلب میرے روزہ دیکھتے ہو، میری قبر دیکھتے ہو، یہاں پر درود کرتے ہو، تمہارے دل کو سکون مل جاتا ہے، اس لیے ہونا۔ تو حضرات محترم کا اس لیے ہونا کہ تم یہاں پر زیارت کر لیتے ہو، درود شریف پڑھ لیتے ہو، میرے روزے کے جو مبارکات شریف ہے سرخری جاری اس کو دیکھ لیتے ہو، یہی بات ہے نا؟ کہا یہی بات ہے، اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، مجھے پسند نہیں ہے، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سن اے معین الدین میرے بیٹے، تجھے پتا نہیں ہے جب اسلام پر وقت آیا تھا نا تو جانتے ہیں تیرے نانا، تیرے دادا، تیرے جد امجد جن کا نام امام حسین ہے، جانتے کیا کیا تھا؟ مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ مدینہ جہاں پر تو بیٹھا ہے اس کو چھوڑ کر گئے تھے، آج وہی وقت آ گیا ہے تجھے بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تیرے جد امجد چھوڑ کر جا سکتے ہیں، امام حسین چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو ضروری ہے تو بھی چھوڑ کر جائے گا میرے بیٹے، اور جا، تیری خواہش کیا ہے کہ تو یہاں پر رہے، تو یہاں پر رہے تو میرے مزار کو دیکھتا ہے، میرے گنبد کو دیکھتا ہے، سرخری جاری کو دیکھتا ہے، چادر مبارک کو دیکھتا ہے، تو تیری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ کہا سن میں تجھے بہت ہی پیاری خوشخبری دے رہا ہوں، بہت ہی پیاری خوشخبری دے رہا ہوں۔ کہا خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے جب تو یہاں رہتا ہے، جب تو یہاں رہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ روزہ دیکھتا ہے، سرخری جاری دیکھتا ہے، چادر دیکھتا ہے، مبارکات شریف دیکھتا ہے، مسجد نبوی دیکھتا ہے، یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ سڑک دیکھتا ہے جہاں پر میں چلا کرتا تھا۔ مگر سن جب تو یہاں رہے گا تو میری قبر کو دیکھے گا، جب تو یہاں رہے گا میرے روزے کو دیکھے گا، مگر ہندوستان چلا جا، جب تو ہندوستان جائے گا تو وہاں تو میرا روزہ نہیں دیکھے گا بلکہ وہاں تو جہاں بھی دیکھے گا تو تجھے تیرا نبی نظر آئے گا، تیرے نبی کا دیدار ہو جائے گا، تیرے نبی کی زیارت ہو جائے گی۔ کہتے بتا اب تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ میری زیارت چاہیے یا میرے روزے کی زیارت چاہیے؟ سنا خوشی خوشی کہتے مجھے ہندوستان جانا ہے کیونکہ مجھے آپ کے روزے سے زیادہ مجھے آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے۔ اتنا سننے کے بعد آ گئے تو جب پرتھوی راج چوہان کا بندہ آیا اس نے کہا چلے جاؤ، دال کرنے والے نہیں ہیں یہاں پر، کسی کی دال نہیں کرتے، پرتھوی راج چوہان کا علاقہ ہے، یہاں کا راجا ہے، یہاں دور دور تک جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو لوگ پرتھوی راج چوہان کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ تو کہاں سے آئے ہیں؟ مدینے سے، آپ کے ساتھ چند فقیر ہے، اگر ہم نے تمہارے پاس میں اگر تمہارے لیے پانی بند کر دیا کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کے من میں آئے کرو، ہم بھی دیکھیں گے۔ جانتے کیا ہوا؟ پورے جو دریائے یعنی دریائے دجلہ تھا اس کو کیا کیا آپ نے وہاں پر پورے پابندی لگا دی، اندر ساگر کو بند کر دیا گیا، اندر ساگر کے پاس میں چاروں طرف فوجی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی واقعہ یاد آ گیا کہ جب ادھر دریائے فرات جوش مار رہا تھا، دریائے فرات جوش مار رہا تھا، امام حسین کے پیچھے حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم تمام کے تمام پیاسے تھے۔ ادھر آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ سب پیاسے۔ پانی بند کر دیا گیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں بند کر دو۔ آپ کے سب سے خاص سب سے چہیتے جن کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا ولی ہے، یہ تو میرا خاص تلمید ہے، میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ آپ نے کہا ایک کام کرو، یہ کشکول ہے، یہ کشکول ہے، لے کر جاؤ، اور تمہیں پاس تو آنے دیا نہیں جائے گا کیونکہ دریا دور ہے نا ساگر، تمہیں قریب نہیں آنے دیا جائے گا، اس لیے تم کیا کرنا، اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دور سے ہی کہنا اے انا ساگر، اے انا ساگر، تجھے غریب نواز بلا رہے ہیں، بس اتنا کہہ دینا اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی ان کے بہت خاص شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، گئے اور جا کر کہتے ہیں حضور مجھے یہی کہنا نا، کہاں یہی کہنا، جاؤ۔ آپ چلے گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے انا ساگر جانتا ہے آج تجھے کس نے بلایا ہے؟ تیری قسمت جا گئی ہے، تیری قسمت کی معراج ہو رہی ہے، آج تو خوش ہو جا۔ اب تک تمہیں پرتھوی راج چوہان بلاتا تھا، اب تک تجھے یہاں کے یعنی غیر مسلم بلاتے تھے، غیر قوم کے لوگ بلاتے تھے، مگر آج اور کوئی نہیں بلکہ حسین کا نوازا بلا رہا ہے، معین الدین اجمیری بلا رہا ہے۔ اتنی بات سنی
जितना अन्न सागर था वो छलका, वो छलकते ही कशकोल में आ गया। कशकोल में आते ही उसने कहा अब मैं कशकोल में आ चुका हूँ, पूरा दरियाए फुरात आ गया, दरिया अन्न सागर आ गया है। वो कशकोल लेकर उसके बाद पानी कहता है ओ खुदुद्दीन मैं तेरे कशकोल में आ गया हूँ, अब तेरी मर्जी, तुम जहां चाहे मुझे ले जा सकता है। अब मैं तेरा गुलाम हूं, क्योंकि तूने नाम ही ऐसा ले दिया, तूने नाम भी ऐसा ले दिया। इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है ए ख्वाजा बाला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जो भी जाता है अपनी झोली भर कर आता है, जो जाता है वो अपने मांगने से सिवा लेकर जाता है। मुसलमानों आप खुश नसीब है, हम खुश नसीब है कि हमें गरीब नवाज जैसा अल्लाह का वली मिला है। जानते अक्सर बेशा आप सोचते होंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, हर जगह गरीब हैं, अक्सर बेशा गरीब हैं। और जो बेचारे पैसे वाले हैं तो वो हमारे लोग नहीं हैं, आप जानते ही हैं। देखो कोई रेलवे में हो, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हो, सब बेचारे वो हमारे नहीं है। वो आप उनके पजामे देखकर समझ सकते कि ये हमारा बंदा है ही नहीं। आपको उनको देखकर कभी कभी महसूस होता है कि शायद फजर का वक्त होगा, रात का वक्त होगा, अंधेरा होगा, बेचारा ये छोटे भाई का पजामा पहनकर बड़े भाई का कुर्ता पहन कर आ गया है, शायद धोखा हो गया। लेकिन धोखा नहीं है, वो धोखा नहीं होता, वो जानबूझकर स्पेशली पजामा ऊपर चढ़ा दिया जाता। हम कहते हैं भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस जरा टकना, यानी जो टकना है वो दिख रहा है तो बस है, टकना दिख रहा तो बस है। मगर ये कहता नहीं मौलाना मुझे टकना नहीं, मुझे तो घुटना दिखाना है। इसलिए क्या करता बेचारा लॉन्ग साइज की चड्डी पहन कर आ गया, लॉन्ग साइज की चड्डी पहन कर आ गया। ये नमाज नहीं है, ये मजाक है। अरे नमाज भी सीखनी है तो गरीब नवाज के घर पर आ जाओ। मेरे गरीब नवाज ने सिर्फ सूफीज़म नहीं सिखाया, सिर्फ सूफीज़म नहीं सिखाया, सब कुछ दिया है आपने। यहां तक फरमाते हैं कि गरीब नवाज तो क्या है जानते हैं आप कि गरीब नवाज कौन थे? सूफी। कभी कभी आप पर अल्लाह ताला की याद इतनी ज्यादा आने लगती, इतनी ज्यादा आने लगती कि आप क्या होते जानते, बेहोशी के आलम में बिल्कुल मजबूर हो जाते, आपकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती जैसे आप इसको जानते ही नहीं है। मैं उनसे नौजवानों से कहता हूं जो लोग नमाजों में तकसीर करते ना, गलती करते, कमी करते, नमाज नहीं पढ़ते, उनसे मैं बड़ी मौत की बात गुजारिश करता हूं। एक नौजवान जरा सोचो, गरीब नवाज खान के आलम में डूबे हुए अल्लाह की याद में, जानते डूबे हुए। इतने जोहर के अजान का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इतना सुनने के बाद एक बंदा आता, अभी आवाज नहीं आई किसी को, आप अभी अल्लाह ताला की याद में डूबे हुए हैं, अजान पे अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ताला की याद में ऐसे मगन हो गए हैं, उनको ख्याल ही नहीं है कि मुझे नमाज पढ़नी है। क्यों? अल्लाह ताला की याद में मगन है। एक बंदा आता खास बोली आकर आपके कान में कहता अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। जब ये कान में जैसे ही आवाज आती आप कहीं पर भी होते फौरन क्या है अपने जो जज्बा है उससे बाहर आ जाते, और बाहर आते कहते जल्दी पानी लेकर आओ, मुझे अल्लाह से मिलने का वक्त हो गया है, जल्दी से पानी लेकर आओ, मेरे अल्लाह से मिलने का वक्त हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम अल्लाह से मुलाकात करो तो नमाज पढ़ा करो, और जब तुम्हारा दिल चाहे अल्लाह से बात करो तो कुरान पढ़ लिया करो। जब दिल चाहे ना कि तुम अल्लाह से बात करो तो कुरान पढ़ लिया करो, जब दिल चाहे रब से मुलाकात करो तुम क्या करो, नमाज पढ़ लिया करो। ये दोनों ऐसे मसले हैं, अगर नमाज पढ़ोगे अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी, कुरान पढ़ोगे अल्लाह से बात हो जाएगी। इतने बेहतरीन नुस्खे हमारे वलियों ने दिए हैं। तो बहरहाल मैं आपको बहुत ही प्यारी बातें, बस हमारी माँ और बहनें हैं, इनकी मेरी नजर में मेरी माँ और बहनें हैं, मैं इनके लिए चंद मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो मर्द हजरात हैं, जुमा टू जुमा आपकी हाजिरी होती रहती मस्जिद में, बयान चलते रहते आप सुनते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी और अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी माँ बहन है, क्योंकि इनको बहुत कम वक्त मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि अगर कोई आना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की 26 तारीख से हमारे ईदगाह नौजवानों की तरफ से समर कैंप रखा गया है, जिसमें 3 आलिमा है जो आप हजरात के लिए, जिसे आपको रोजमर्रा की जो दीनी बातें हैं वो मालूम करनी है, आपको कुरान सही तरीके से तजवीज से पढ़ना है, आप वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर जो भी चाहिए दीनी मालूमात, कुरान पाक, नाजरा या कुछ भी आप करना चाहते हैं
सीख सकते हैं। वो 1 महीने का कैंप होगा, उसमें 26 तारीख से आप लोग आ सकते हैं। और ये हमारे ईदगाह मदरसे के बाजू में ही जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर ये फंक्शन रखा गया, लिहाजा आप हजरात अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उसमें आ सकते हैं। ये तमाम ये एक ऐलान है। तो बहुत ही खुशी बात है, क्योंकि हमारी माँ और बहनें क्या है, दीन से जरा दूर है, इसलिए आज हर घर का माहौल तल्ख बना हुआ है, हर घर में आग लगी हुई है। मैंने अपनी मस्जिद में भी कहा था तो हमारे लोग सुनकर काफी मुतासिर हुए, बहुत मुतासिर हुए। मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ। देर तो नहीं हजरत, देर तो नहीं हो रही ना, देर तो नहीं हो रही ना? जी जी, क्योंकि बहुत मखसूस बात है जी। तो देखिए बात चल रही थी कि बहुत ही खास बात मैंने बताई थी कहाँ पर, अपनी मस्जिद में। तो लोगों ने सुनने पर काफी अच्छा रिएक्शन मिला, उन लोगों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी मस्जिद में तादाद बढ़ती हुई नजर आई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बात कही थी और मैं बात आपके भी जहन में डालना चाहता हूँ। अगर अपने घर में भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो घर में नहीं आए हैं उनसे भी गुजारिश है अभी भी आए, ज्वाइन हो जाएं। अभी भी अल्लाह की रहमत बरसात हो रही है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए। शायर ने कहा है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुशनसीब होता है। और आप जितने भी सब खुश नसीब है। क्यों? इसलिए कि आप आए नहीं है, आप खुद से नहीं आए। पता खुद से कहां जाते मालूम? जब कोई फिल्म रिलीज होती ना, कोई बड़ी फिल्म, चाहे वो तेलुगु हो चाहे कोई सी भी हो, जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है ना, तो हम लोग खुद जाते हैं, जाकर वहां पर 200, 250, 300 रुपए का टिकट खरीदते हैं, लाइन में लगते हैं, धक्के खाते हैं, वहां पर जाकर फिर गैर और लोगों को देखते हैं, वहां आपको जाना पड़ता है, वहां आपको बुलाया नहीं जाता, आप खुद जाते हैं। मगर ये महफिल हुजूर है, यहाँ पर आप नहीं आते, बल्कि रसूल आपको खुद बुलाते हैं, कहते हैं मेरे आशिक आजा, यहाँ तुम्हें गंदगी नहीं मिलेगी, यहाँ पर गंदगी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई गंदी बात नहीं मिलेगी, यहाँ जो भी मिलेगा अल्लाह ताला की रहमतों का हिस्सा मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बतों का हिस्सा मिलेगा, रसूल का इश्क मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब निवास की मोहब्बत भी तुम्हें मिल जाएगी। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, मौजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हिमायत दीन जिंदाबाद। सालिम मोहतरम, तो बहुत ही प्यारी बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि देखिए मैंने कहा था कि मेरे आका ने, जो लोग नमाज नहीं पढ़े उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही अहम बात है, नमाज ऐसी चीज है। अब तो दूसरी बातें शायद पेश आए या ना, लेकिन नमाज तो हमेशा पेश आती है। ईशा का वक्त हो गया, रात हो गई, फजर का वक्त हो गया, 5-6 घंटे का लम्हा गुजरा, जुहर का वक्त हो गया, जुहर गुजारी असर का वक्त हो गया, असर गुजारी मगरिब का वक्त हो गया। मतलब ये कि नमाज से छुटकारा नहीं है आपको। इसलिए जो नौजवान आजकल फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे इतने बिजी हो गए, होटल में बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, उनको ख्याल ही नहीं है कि नमाज हमारे पास जरूरी है। वो सोचते हैं मौलाना को हमने तनख्वाह दे दी 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपए, अब ये जिम्मेदारी मौलाना की है, वो पढ़े या ना पढ़े। जो बेचारे 60 सिटीजन है, यानी 60 साल हो गए, रिटायर्ड हो गए रेलवे से, कोई काम नहीं है, घर की औरतें कहती क्या कर रहे हो, जाओ नमाज पढ़ के आओ, बेचारे आकर वो कुर्सी पर बैठ जाते, तो सोचते हैं कि नमाज इनकी है और इमाम साहब की है। हम लोग तो अभी नौजवान हैं, यंग हैं, अभी तो हमारे पर जवानी चल रही है, हमें क्या जरूरत नमाज पढ़ने की। मैं उनसे बहुत ही एक अहम बात बताना चाहता हूं। जानते मेरे आका ने फरमाया, ए अल्लाह, ये मुझसे लोग कह रहे हैं कि चांद टुकड़े हो जाए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है, चांद टुकड़े करने के लिए कौन कहता है? कहा अबू जहल। अल्लाह ने फरमाया लो अभी लो, इसीलिए क्या कर दिया, चांद के टुकड़े फरमा दिए। सूरज डूब गया, हजरत अली की नमाज छूट गई। आपने फरमाया ए अल्लाह, नमाज छूटी है, अगर आज अली ने नमाज नहीं पढ़ी तो लोग कहेंगे कि इसको झूठ में नमाज छोड़ दी, लेकिन नमाज पढ़ी इसका फायदा क्या हुआ? इसलिए अल्लाह ने कहा ए मेरे मौला, मेरा दिल चाहता है कि जो सूरज डूब गया है ना, ये फिर से वापस आ जाए। गौर से सुनना एक एक बात को, मेरा दिल चाहता है कि ये सूरज डूब गया ना, वापस आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है महबूब, अरे कायनात तेरे लिए बनाई है, जमीन तेरे लिए है, आसमान तेरे लिए है, चांद तेरे लिए है, सितारे तेरे लिए है, ये आदम तुम्हारे लिए आए, ईसा तुम्हारे लिए आए, मूसा तुम्हारे लिए आए, इब्लीस तुम्हारे लिए आए, शीश तुम्हारे लिए आए, इद्रीस तुम्हारे लिए आए, ज़करिया तुम्हारे लिए आए, यहया तुम्हारे लिए आए, मूसा तुम्हारे लिए आए, इब्राहीम तुम्हारे लिए आए, खलील तुम्हारे लिए आए, इस्माईल तुम्हारे लिए आए, इसहाक तुम्हारे लिए आए, यूसुफ तुम्हारे लिए आए, जितने नबी
नबी आए हैं, सब तुम्हारे लिए आए हैं। हकीकत तो ये है, अगर तुम नबी ना होते तो मैं किसी को यही ना बताता मैं अल्लाह हूं। मैं ये नहीं बताता कि मैं अल्लाह हूं, मैं नहीं बताता किसी को। ये तो महबूब तू आया है, तेरी वजह से क्या क्या है, मैंने मेरी कायनात को रोशन कर दिया, मेरा महबूब आ रहा है। तो ये कौन सी बात है? सूरज को पलटाना ना, अल्लाह ने इशारा फरमा दिया, सूरज फिर से पलटा गया। मेरी बात को वो सुने, अल्लाह के हबीब ने चाहा चांद पलट जाए, चांद यानी चांद टुकड़े हो जाए, चांद टुकड़े हो गया। कहा सूरज पलट आए, सूरज ने पलट आया। फिर अल्लाह के हबीब ने कहा, ए मेरे मौला, मैं जब से मदीने में आया हूँ, जब से मैं नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ता हूँ, यहूदी ताना देते हैं, जो जीव से ना इजराइल वाले, वो ताना देते थे, नया नबी है, नई किताब है, नई बातें हैं, फिर नमाज हमारी बात क्यों पढ़ता है? मस्जिद अक्सा तो हमारी है ना, जो मुल्क शाम के अंदर है वो तो हमारी है, सिजर वो तो हमारी है, वहां नमाज क्यों पढ़ते हो? अगर तुम्हें वाकई नया दीन लेकर आए हो तो फिर अपना क़िबला भी नया बनाओ। नमाज जोहर पढ़ रहे थे आका, 2 रकात पढ़ ली, 2 रकात पढ़ ली, अभी 2 रकात बाकी है। जहन में ख्याल आया, मेरे मौला बहुत दिन हो गए, ये लोग कब से बोलते हैं, मेरे मौला मेरा दिल चाहता है कि मेरा क़िबला बदल दिया जाए, मेरा दिल चाहता है, बस इतना कहा, ये नहीं कि तू बदल दे, नहीं, मेरा दिल चाहता है कि बस क़िबला बदल दे मेरे मौला। इतनी बात सुनी, सुनते ही अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, तू चाहता है ना, जो तू चाहता है समझ ले, मैं वो करके दिखाता हूँ। उसी वक्त हुक्म हुआ, जिब्राइल से जाओ, जाकर मेरे हबीब के कान में कह दो, जहां तेरा दिल चाहे उधर को फिर जा, तू जिधर को फिर जाएगा वही तेरा क़िबला बन जाएगा। इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है? जिधर फिर जाएगा तेरा क़िबला बन जाएगा। हुआ क्या, मेरे आका के दिल में पहले ही था, क्योंकि जब आप मक्के में रहते थे ना तो नमाज उधर ही पढ़ते थे, मक्के की तरफ, काबे की तरफ पढ़ते थे। फौरन ही फिर गए, क़िबले की तरफ को हाथ किया और पढ़ने लगे, उसी दिन से क़िबला हमारा काबा बन गया। बहुत ही खुसूसी बात, आखिरी बात पर आ रहा हूं मैं, क़िबला बन गया। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में कहता हूं, उनके देखिए मेरे हबीब ने कहा, चांद टुकड़े हो जाए, हो गया, सूरज पलट जाए, सूरज पलट गया, क़िबला बदल जाए, क़िबला बदल गया। जितनी दुआएं मांगी, जो चाहा अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने एक बात देखी है, अल्लाह के हबीब या अल्लाह का कोई सा भी नबी जो चाहता है, अल्लाह ताला उसको जल्दी करने में बहुत जल्दी करता है, उस दुआ को कबूल करने में बहुत जल्दी करता है। अब आओ, सबसे अहम बात, चाहे माँ बहनें हो, चाहे आप हो, सबसे मेरी गुजारिश है कि देखिए क्या होता है जानते, एक मर्तबा मेरे आका ने नमाज पढ़ाई फजर की, और जब देखा तो पीछे कुछ लोग नमाज में नहीं थे, अल्लाह के हबीब को चला ना गया। आपने 12 आयत सुनी होगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने हमारे हबीब को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। शायर भी कहता है वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहते वहां रह जाते, ये वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहते वहां रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। इतने बड़ी रहमत वाले नबी, काली कमली वाले नबी, जानते देखा गुस्से में आपका चेहरा लाल हो गया। आपने कहा, ए मेरे साहब जानते हो, अगर मेरा दिल तो ये चाहता है, देखिए वही बात जो कहा था ना, चांद टुकड़े हो जाए, मेरे हबीब ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी से कहूं, ए इधर आओ, उमर इधर आओ, अबू बकर इधर आओ, नमाज पढ़ाओ, और मेरा दिल चाहता है कि घरों में जाऊं लोगों के, और जो लोग घर में सो रहे ना उनके घरों में आग लगा दो, उनके घरों में आग लगा दो। कितनी बड़ी बात है जो हर आलम के लिए है, वो ऐसी बात कहता है, पता चला कि नमाज कितनी अहमियत की हामिल है, नमाज कितनी जरूरी है, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है, इस हदीस से अंदाजा लग जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं घरों में आग लगा दूं, मगर मुझे बच्चों की और औरतों की फिक्र है, मगर मैं औरतों की वजह से और बच्चों की वजह से आग नहीं लगा सकता, वरना मैं दिल चाहता है जाकर आग लगा। अरे मैं, मेरे हबीब तू चाहता है ना, मैं आग लगाऊंगा, तू नहीं लगाएगा, मैं आग लगाऊंगा। अल्लाह ने सबके घरों में आग लगा दी। आप कहेंगे हमारे घर में तो आग है ही नहीं, हम लोग तो बड़े बड़े गैस सिलेंडर लाकर आग लगाते तो बड़ी मुश्किल से आग लगती है, तुम कह रहे हो हमारे घर में आग है, मगर मैं बताऊं तुम्हारे घर में आग है, सबके घर में आग है, हर किसी घर में आग है। आज बताओ कौन सा घर सलामत है जिसमें बाप बेटे का झगड़ा नहीं होता? कौन सा घर सलामत है जहां पर लोग आपस में जुड़े हुए नहीं है? वो कौन सा घर है कि जहां पर सास बहू की लड़ाई नहीं होती? वो कौन सा घर है जहां भाई भाई आपस में लड़े नहीं है? वो कौन सा घर है जहां पर आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते? वो कौन सा घर है? कितनी जगहों पर देख लो, कहीं पर सुसाइड हो रहा है, कहीं ट्रेन के नीचे कट
कर मर रहा है, किसी को देखो फांस पर लटक कर मर रहा है, कोई शहर खाकर मर रहा है, कोई शुगर पॉइजन का शिकार हो रहा है। ये क्यों? जानते हैं क्यों? मेरे आका ने फरमाया था कि जब जब कोई नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह उनके घरों में आग लगाएगा। आग ऐसी होगी, अगर तुम्हारे घरों में असली आग लग जाती, असली जो आग हमारे मुआशरे में है ना, अगर ये आग लगती तो आप क्या होता जानते? कोई भी पड़ोसी आता भागता हुआ, क्या हुआ भाई? कहते थे तो घर में आग लग गई, आग लग गई, पानी लेकर आता, डाल देता, आग बुझ जाती, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसी परेशानी नहीं दूंगा मैं। क्यों? ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। आग लगेगी, लोग आएंगे, मशीन आएगी, जो पानी की मशीन आती है, थोड़ी देर मारेगी, घर साफ हो जाएगा, मदद मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी, बच जाएगा। अल्लाह फरमाता नहीं, नमाज छोड़ी है ना, बड़ी सजा दूंगा, बड़ी सजा। और बड़ी सजा ये है, तुम्हारे घरों में आग लगा दूंगा, और हर घर में आग, आज आग लगी हुई है। अब आप चाहते हैं आपने ये तो बताया घर में आग लगी है, इसका सोल्यूशन भी लेना, तो आओ मैं सोल्यूशन देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों में जो आग लगी है वो खत्म हो जाए, फरमाते नमाज, यानी जो नमाज मेरी आंखों में ठंडक है, जो नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडक मिल जाती है। जाहिर बात है आप नमाज पढ़ेंगे और मेरे आका की जो आंखें हैं उनको ठंडक मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह तुम्हारा घर भी ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा घर भी ठंडा हो जाएगा। मेरे भाइयों, बहुत ही अफसोस कहना पड़ता है कि आज 90% मुसलमान नमाजी नहीं है। जिसको देखो नमाज छोड़े हुए। बहरहाल बस एक छोटा सा वाकया मेरी माँ बहनों की नजर करता हूँ, और अगर इनको समझ आ जाए तो बहुत ही प्यारी बात होगी। मैं समझ लूंगा कि मेरा आना, मेरा बैठना, आपका सुनना, मेरा सुनाना सब हो गया। बहुत ही प्यारी बात है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे घर अमन और सलामती का गहवारा बन जाए, जन्नत का नमूना बन जाए, रोज़तुल नियाज़ी जन्नत बन जाए। मैं हर जगह मेरी एक कोशिश होती है, मैं अपने यहाँ पर और यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहन यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही प्यारा वाकया, क्योंकि आज सास और बहू के झगड़े बहुत मशहूर हैं। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर तबाह हो गए। मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब एक लड़की बहू बनकर घर में आती है ना, तो उसके ख्यालात अलग होते, सास के ख्यालात अलग होते, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, लड़ाई झगड़े होते, बाद में कभी कभी तो ऐसा होता है कि तलाक की नौबतें तक आ जाती है। क्यों? इसलिए कि इल्म नहीं हमारे पास में। इल्म होता तो शायद अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन ढूंढ लेते, सोल्व कर लेते, मगर सोल्व करेंगे कैसे? आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ी, आपके पास इल्म नहीं, आपके पास में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई है, मगर मेरे नबी की हदीस तुम्हारे पास नहीं है। अगर वो होती तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी होती। आओ मैं आपको बताऊं, एक वाक्य मेरे जहन में आ रहा है। मेरी उन बहनों से गुजारिश है कि जो बहू बनकर अपने शौहर के घर में आती है ना, आपस में लड़ाई झगड़े मत करना। मैं हाथ जोड़कर आपसे मुआफ़िबाना विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे मारूफा पेश कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़े मत करो। कोई फायदा लड़ाई झगड़े में नहीं है। बहुत ही प्यारा वाकया, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इबरतनाक है, बहुत ही क्या इबरत आमेज है। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि वाकई आपने ये वाकया सुना है, तो आप इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि मुसलमान माँ और बहनें अगर कोई अच्छी बात लगती है तो कभी छोड़ के नहीं, जरूर उसमें जाए, फायदा हासिल करती है इंशाअल्लाह, और आज भी फायदा होगा। बात है, एक लड़के की शादी हुई, पुराने जमाने का तकरीबन 2 साल पुराना वाकया है। शादी हुई और उसके बाद एक बहू आई। घर में आने के बाद में कुछ दिन में आपस में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हुए। इस लड़ाई झगड़े में अक्सर यानी पिछता कौन है? बेचारा लड़का। क्यों? मैं दोनों पहलू की बात करता हूं, कभी भी एक पहलू की बात नहीं करता। माँ भी जरूरी है, बीवी भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। पिछता कौन है? हमारा नौजवान। क्यों? इसलिए कि अगर वो माँ की बात करता है तो बीवी कहती है मुझे क्यों लेकर आए? अगर माँ से इतनी प्यार है, इतनी मोहब्बत है, मुझे क्यों लेकर आया? मैं तेरे घर चल गई, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, चचा को छोड़ा, ताऊ छोड़ा, सारे रिश्तेदार छोड़ दिए मेरे चक्कर में, और तू है कि अपनी माँ की बात सुनता। अब सपोज ये अपनी बीवी की बात सुनता तो माँ कहती बेटा तू बदल गया, शादी से पहले तो बड़ा अच्छा था, शादी से पहले बड़ा अच्छा था, मेरी हर बात सुनता था, लेकिन शादी बाद में तेरा माहौल बदल गया, तेरी बातें बदल गई। लेकिन एक मेरे भाई याद रखे, बदलता कोई नहीं है। हकीकत तो यह है हमारे सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है। बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं मेरा, ये आप इसको नॉलेज के लीजिए, एक्सपीरियंस कर लीजिए, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई एक अमानत समझ लीजिए, जो मैं आपके जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा नजरिया बदल जाता है। हमने अपनी बेटी को ब्याया, शादी कर दी, हमारी बेटी किसी घर चली गई, अगर हमारी बेटी की बात हमारा दामाद सुनता है,
हम कहते कितना अच्छा मिला है, सोना है सोना। दामाद कितना अच्छा मिला जानते, इतना अच्छा मिला है, सोना है सोना, हीरा है, जवाहिरात है, बहुत ही प्यारा है। मेरी बेटी जो कहती है ना, मेरी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता है, बहुत ही अच्छा दामाद मिला है। लेकिन ये मुसलमान यहाँ एक नजरिया, जब कोई दूसरी लड़की शादी होकर तेरे घर में आती है, और जब तेरा बेटा अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करता है, तो माँ कहती है कि जोरू का गुलाम बन गया, 1 महीने में जोरू का गुलाम बन गया। बताओ, उधर तेरी बेटी खुश है तो उधर जोरू का गुलाम नहीं है, दामाद अच्छा है, सोना है। लेकिन तेरा बेटा अगर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो जोरू का गुलाम बन गया। ये दोहरे रवैये है, इसको बदलना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। कि जब तेरी बेटी वहां खुश है तो तू कह बेटा, जब तेरी बहन खुश है तो मैं कहती हूँ बेटे तेरे घर में जो लड़की आई है इसको भी खुश रखना। इसलिए कि उधर मेरा दामाद मेरी बेटी को खुश रखता है, मैं कहती हूँ ये भी तो किसी की बेटी है ना, इसको तो खुश रखना। मैं बता रहा था आपको, बहुत ही प्यारा वाकया। शादी हुई, लड़की घर में आई, सास और बहू की लड़ाई शुरू हो गई। ये तो पहले से बहुत पहले चला आ रहा है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उसने अपने शोहर से कहा कि तुम्हारी माँ है, मुझे बार बार ताली मारती है, टोकती है, लड़ाई करके झगड़ा करके, क्या करना चाहिए? उसने कहा भाई ये माँ है, पैदा किया है, तुम बीवी हो, मैं तुम्हें शादी करके लेकर आया हूं, तुम सबको छोड़कर आई, मैं क्या करूं? भाई मुझे कुछ नहीं पता, तुम आपस में सुलझा लो मसला। बेचारा कहकर सुबह को ड्यूटी चला जाता, शाम को आता, फिर वही बात, तुम्हारी माँ ने आज मुझे यूं कहा, तुम्हारी माँ ने आज यूं कहा। लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे, जानते क्या हुआ? आखिर नहीं हुआ। उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम आपस में करते रहो, मुझे आज से ये सारी प्रॉब्लम मत सुनो ना अपनी। लड़का बाजू में हो गया। अब इन दोनों के आपस की रंजिश बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि इसका जो शोहर था ना, इस शोहर का एक दोस्त था, वो हकीम था। बहुत ही प्यारा वाकया है, मैं आपके नजर कर रहा हूं कि फिर जानते क्या हुआ? इस लड़की ने सोचा कि नहीं, उसके जो लड़की का बाप था, मतलब लड़के का ससुर था, उसका एक दोस्त था जो हकीम था। इसने सोचा अपने घर गई, घर जाकर कहती है एक बार के मोहतरम, आपने मुझे कहां फंसा दिया? मेरी सास है, जिस दिन से गई मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, जहन्नम बना दी है, तब भी देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मैं क्या करूं? बाप ने कहा, बाप समझदार था, मैं जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं उनकी अगर बेटियों की शादी हो गई ना, मुअद्दिबाना हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, घर बचाना है तो कभी भी अपनी बेटी की बात ज्यादा मत सुनना, सुलझाना मसला, लेकिन उनकी हर बात को एक्सेप्ट मत करना। क्यों? इसलिए कि कभी कभी क्या होता है, लड़कियां छोटी बात को बड़ी बना देती है। मैं अपनी तमाम माँ बहनों से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, मैं आपका छोटा सा भाई हूँ और मैं अपने यानी नॉलेज की बिना पर, इल्म की बिना पर बोल रहा हूँ, और शायद ये बिल्कुल सच होगा, गलत नहीं होगा। ये कभी कभी ऐसा होता है, छोटी बात को पेश कर देती, और अगर उसी वक्त माँ ने उसको सपोर्ट किया, बेटी तुम मत जाना मैं देखूंगी, बाप ने कहा बेटी मत जाना मैं देखूंगी, तो यहां से रिश्ते में दरारें पैदा होने लगती है। जानते बाप समझदार था, उसने कहा बेटी सुनो, मैंने तुम्हारी शादी कर दी है और मुझे पता है कि लड़का अच्छा, क्योंकि मैंने देखा है, गलती कोई भी नहीं है, तुम्हारी गलती होगी, सास की गलती होगी, लिहाजा जाओ और जाकर घर का जो मामला है उसको सुलझा लो, आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। उसने कहा, और सुनो, अब तुम आ गई हो, अगली बार लड़ाई झगड़ा करके मेरे घर के पास बताना, जब भी आना खुशी से आना, 4 दिन रहना, 6 दिन रहना, 8 दिन रहना, महीना रहना, 2 महीने रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर लड़ाई करके मेरे पास मत आना। इसने सोचा बाप तो मेरा साथ नहीं देगा, इसने तो मेरा हाथ दे दिया, मैं क्या करूं? जानते हैं क्या क्या इसके दिमाग में, औरत है ना, कुछ भी ख्याल आता रहता है। उस औरत के जहन में ख्याल आया कि मैं अब अपने बाप के जो भाई है उससे मिलती रहता, हकीम है वो। उसके बाद जगह करी, चाचा सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, क्यों आई हो बेटी? कहा बस मुझे दवा चाहिए। कहा कौन सी दवा? कहा जहर दे दो मुझे। क्या करोगे? कहा मुझे वो जहर ले जाकर जो अपनी सास को खिलाना है। बहुत परेशान हो गई, मेरा शोहर है वो नहीं सुनता, बाप है वो नहीं सुनता, मैं करूं तो करूं क्या? मेरे जहन में एक ही मसला है, जहर खिलाऊंगी मार डालूंगी, किस्सा खत्म। एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो मैं रहूंगी या वो रहेगी। एक शहर में 2 बादशाह नहीं रह सकते, मगर हाँ ऐसा होता है कि एक गुदड़ी में 10 फकीर सो सकते, एक गुदड़ी में, एक चादर में 10 फकीर सो सकते हैं, मगर एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं रह सकते। ये बात है, घर भी एक मुल्क है, कंट्री की जगह है, उसने कहा एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए मुझे उसको जहर मिला के मारना। हकीम जी वो समझदार थे, उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप मारना चाहती हो ना तो मेरी गुजारिश है, अगर मैं तुम्हें जहर दिया, तुमने जाकर अपनी सास को खिला दिया, लोग कहेंगे रोज झगड़ा हो रहा था, बहू ने शायद जहर दे दिया, वो मर गई होगी, इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। अगर तुम्हें बचना है तो मैं एक तरीका बताता हूं, जहर भी खिला दोगी
और तुम्हारे पे इल्जाम भी नहीं है। कहा ये बड़ा अच्छा तरीका है, मैं समझ रही कि आप भी मेरा साथ देंगे, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, बताइए क्या करूं मैं। कहा देखो मैं आपको वो जहर नहीं दूंगा जो जहर कातिल कहलाता है। जहर कातिल का मतलब होता है एक दिन में इंसान आउट, एक दिन में खत्म, फिनिश। उसने कहा मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 3 महीने वाला जहर दूंगा, 3 महीने का, जिसको हम आज के जमाने में स्लो पॉइजन कहते हैं। स्लो पॉइजन मतलब किसी को खाने में खिलाते रहो आप, वो खाता रहेगा पर उसको पता नहीं चलता कि मुझे क्या हो रहा है। वो धीरे 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 क्या होता है मालूम, उसके अंदर एक ऐसा जहर पैदा होता है कि वो 3 महीने बाद मर जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि स्लो पॉइजन था, कैसे मरा। जब कभी पोस्टमार्टम वगैरह होता तो पता चलता क्या इसको कोई स्लो पॉइजन दिया है, जब तक पता नहीं चलता कि ये बंदा मरा कैसे। कहा देखो 3 महीने की दवा है, जाओ और जाकर सबसे पहले काम करो, अपनी सास से प्यार मोहब्बत करो। कितना प्यारा होगा वो इंसान, कहता जाओ और जाकर अपनी सास से मोहब्बत करो। कहा अच्छा सास से मोहब्बत करने का फायदा क्या होगा। कहा फायदा ये होगा अगर 3 महीने बाद तेरी सास मर गई ना तो लोग कहेंगे कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था, बाद में तो मोहब्बत हो गई थी ना, ये तो नहीं मार सकती अपनी आदमी अपनी सास को। इसलिए क्या करना, ये दवा है, रात को जाओ जाकर पहले सास के पैर दबाओ, जाकर उसके पांव दबाओ, और रात में जब वो कहे पानी लेकर आओ फौरन पानी पेश कर देना, जब वो कहे खाना लेकर आओ खाना पेश कर देना, और उसी खाने में ये दवा मिला देना, वो खा लेगी। दोपहर में ऐसे करना, शाम में ऐसे करना, पैर दबाना, खिदमत करना, जब भी कोई बात हो जब भी पुकारे 3 महीने का खाना, 3 महीने में तेरी जो सांस खत्म हो जाएगी, बाद तेरा राज चलेगा। उसने कहा बहुत अच्छा तरीका है, मैं 3 महीने कैसे भी खिदमत कर सकती हूँ, मुझे इससे आजादी चाहिए, सांस से आजादी चाहिए, मगर मुझे 3 महीने की खिदमत करने तैयार हूँ। जानते क्या हुआ, ये बहू वहां से जहर समझ के वो दवा ले आती, और इस औरत ने क्या किया, उस जहर को खाने में लेना शुरू कर दिया। रात में जब सोने का वक्त आया ना तो इसने क्या किया, उसके पैरों को दबाना शुरू कर दिया, पैरों को दबाती रही। सास ने देखा ये इसका नजरिया कैसे बदल गया, अब तक तो लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन सडन से ये क्या कर रही है, मेरे पैर दबा रही है। उसने भी प्यार से अपने पास बुलाया, चुमकारा, हाथों का बोसा दिया, कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अगला दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, 5 दिन, इन दोनों में मोहब्बत धीरे धीरे पैदा होने लगी। ये दवा समझकर जहर समझकर दवा देती जाती है, वो खाती जाती है। रोज पैर दबाना, रोज पानी लेना, रोज खाना लेना, ये सिलसिला चलता रहा 1 महीना हो गया। 1 महीने में सास और बहू में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई, इतनी मोहब्बत पैदा हो गई। बहू ने कहा मेरी सास गलत नहीं हो सकती, सास ने कहा मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। इसने कहा मेरी सास गलत नहीं हो सकती, और सास ने कहा मेरी बहू गलत नहीं है। 1 महीने से क्या खिदमत कर रही है, मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है। और ऐसा ही ये कहती है कि मेरी सास मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये मेरी सास है, ये मेरी माँ। जानते 1 महीना हुआ, भागी भागी बुर्का पहना, दौड़ी चादर के पास जाकर कहती है, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैं अपनी सास को मारने के लिए जो जहर लेकर आई थी, मेरी गुजारिश है, मैंने 1 साल तक अपनी सास को जहर खिलाया, 1 महीने तक जहर खिलाया, मुझे खतरा लग रहा है कि शायद मेरी सास के अंतड़ियों में सब जगह क्या है जहर फैल गया होगा, शायद वो मर जाएगी 3 महीने बाद। इसलिए कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरी सास बच जाए। मुझे मारना नहीं है, वो पहले गलत फहमी थी, मुझे मारना नहीं है, क्योंकि वो पहले गलत फहमी थी, मुझे है वो समझती मैं गलत हूँ। जब से मैंने उससे प्यार किया है वो भी मुझे प्यार कर रही है, मैं उसे मोहब्बत देती हूँ, वो मुझे मोहब्बत देती है, मैं उसको माँ समझती हूँ, वो मुझे बेटी समझती है, और मुझे मारना नहीं है। ऐसी दवा दे दो जिससे मेरी सास बच जाए। हकीम जी मुस्कुराए। हकीम जी ने कहा क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जहर दूंगा मारने के लिए? अरे बेवकूफ लड़की, मैंने जहर नहीं दिया था, मैंने तेरी सास का पेट सफा करने की दवा दी थी, मैंने पेट साफ करने की दवा दी थी ताकि तू खाने मिलाती रहे, इसका मिजाज अच्छा रहेगा, खाना हजम होता रहेगा। फिर वो लड़ाई कैसे करेगी तुझसे, लड़ाई नहीं करेगी तुझसे, इसलिए मैंने बोल दिया था। और तू खिलाते रहे, प्यार बढ़ता रहा, तेरी तरफ से मोहब्बत हुई, उसकी तरफ से मोहब्बत हुई। आज मामला ये है कि दोनों के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, और तू भागकर कहती है कि अब मुझे उसे मारना नहीं है, जब तक जिंदा रहेगी मुझे तब तक उसकी खिदमत करनी। यही पैगाम मेरे करीब नवाज का है। छठी शरीफ गुजर चुकी है, हमारे हुजूर वली साहब ने उसी मौके पर ये क्या है यहाँ पर इस जलसे का आगाज किया और इनेकाद किया। बहुत सी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, आपको शिफाए कामिला आजिला कायमा दायमा मुस्तमिल दे, आपका जो साया है आपके मुरीदीन पर, आपके चाहने वालों पर, तमाम पर ताजे कायम रहे। और मेरे इस शहर के जो वली है, मस्तान वली है, उनका साया भी हमारे सरों पर, हमारे घरों पर हमेशा कायम रहे। उनकी मोहब्बत हमारे सुबह जो है अभी उसमें इजाफा होता रहे। बस यही गुजारिश करूंगा
اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھے. آپ تمام کے تمام یعنی بہت قابل تعریف ہے, قابل داد ہے, قابل تحسین ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے کہا ہے. یہ ہمارا